which is starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to discuss chapter number 2 of the book that we have recommended for your course. The title of the book is basically Corporate Governance and Pakistan's Perspective by Dr. S.A. Bhatt. I will share you the PDF file of the chapters as well because I think the book is not available in soft form. So what I have to do, I will make the pictures of all the pages later on. I will make the PDF file of each chapter time to time and will be shared with you. So chapter number 2 of today's book, chapter number 2 of the book is being the discussion of our topic for today's class. Now, what we have to do, we have to consider uh, that if we are studying corporate governance in 2020, it is not the effort of a single year. We may say that corporate governance or the rules and regulations in governance or what the activities at corporate level is required, all these things are not the result of a single year or a year or a two, but it is the story that started long ago. Means to say that the corporate governance being prevailing in Pakistan or even in the rest of the world, there is basically the efforts, there is basically the learning of different companies, what they learned from this activity, what was the consequences, what was the frauds, what were the frauds, what were the scandals that happened in different organizations, and then in order to tackle the situation, they created different rules and regulations, and the end result or the outcome is basically the corporate governance that we are learning. And the story is not ended yet. We may say that in the near future or in the current situation, there are many scandals, there are many failures in an organization. And what we have to do, we just have to wait. And in the future, there will be certain more updations. As long as the corporate governance is concerned, अगर आप ये बात समझ लें कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप कभी ये नहीं कह सकते दैट सर वी हैव डिसाइडेड और ये रूल्स अब टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड चलते रहेंगे. नहीं, रूल्स बनते हैं, उसके बाद जब उनमें अमेंडमेंट्स आती हैं, उनमें चेंजेस आती हैं, ये सारे प्रोसेस को ये साथ साथ चलता रहता है. एक वक्त आता है जब हम उनमें फील करते हैं कि वट एवर द रूल्स वी मेड इन द पास्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अस इन द फ्यूचर, यानी हमारे फ्यूचर में ये रूल्स नहीं चलने वाले. तो यही रूल्स पास्ट में क्या थे, हमारा चैप्टर उसी के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. फाइन. So the very first thing is basically the corporate governance as field of study. कब हमें ये महसूस हुआ कि ये जो हम डिसाइड कर लेते हैं कि जी द शेयर होल्डर्स विल हैव टू सिलेक्ट द गवर्नेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट गवर्नेंस विल टेक द डिसीजंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसे एज अ स्टडी अब लेना चाहिए. ये कोई इतनी आसान और ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि वी शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड. हमने इन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना. वी हैव टू कंसीडर कि ये एक नॉलेज है. ये ऐसे नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लोगों को इलेक्ट कर लिया एंड दैट group of people have the capability to take the decisions of an organization. Organizations ने आपके लिए वर्थ क्रिएट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए काम करना है. विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल ऑब्जर्व कि वो जो लोग थे उन्होंने आपके लिए कितना बेनिफिट्स क्रिएट किए एंड व्हाट वर द प्रॉब्लम्स और व्हाट वर द नेगेटिव आउटकम्स दैट पीपल क्रिएटेड फॉर यू. यानी वो जो लोग आपने इलेक्ट किए हैं वो हमेशा फायदा नहीं पहुंचाएंगे, कभी नुकसान भी पहुंचाएंगे. और आपने जब वो आपसे नुकसान पहुंचाएंगे, आपने उससे क्या सीखा. तो अब सिंपल सी बात है कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बहुत
अरसे पहले से आ गया था। जब ये कॉरपोरेशंस का कॉन्सेप्ट आने लगा, जब शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट आने लगा, जब इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट आने लगा, जब एनुअल जनरल मीटिंग का कॉन्सेप्ट आने लगा, एट दैट टाइम द कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्टेड फाइन। और फिर कुछ एक वक्त आया जब हमने कहा कि नहीं, वी आर प्रैक्टिकली परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी, बट वी शुड ट्राई टू लर्न इट एज वेल। यानी ये कोई ऐसी बात नहीं है जो खुद ही हो जाएगी, आपको इसके बारे में सीखना पड़ेगा, आपको कोई रूल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, आपको एक तरीकेकार से इसे एज अ फील्ड ऑफ स्टडी लेके चलना पड़ेगा। आप जब तक इसे सीखेंगे नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई फेलियर या स्कैंडल का फेस करती है तो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी नहीं है कि दे हैव टू फेस द सेम सिचुएशन। हो सकता है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से सीख ले इतना कि वो जो फेलियर या जो प्रॉब्लम्स एक ऑर्गेनाइजेशन को आई हुई है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास आने ही ना दें। How they will make it happen that they will not create any sort of failure, or they will tackle all sort of scandals if they will start to learn from the first organization। अगर वो पहली ऑर्गेनाइजेशन से सीखना शुरू कर देगी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से, तो वो बच सकती है। और जब हम ये कहने लग जाते हैं कि व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन लर्न, इसका मतलब है उन्हें हम डिसाइड कर लेंगे दीज आर द थिंग दैट वी शुड लर्न। वो जो चीजें हमने डिसाइड की हैं वो क्या हैं, वो हमारी फील्ड ऑफ स्टडी है। हम इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वही चीजें समझ रहे हैं कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और जिनके बारे में हमारी डिस्कशन है वो असल में है क्या। तो अब इसमें आपने एक बात देख रहे हैं कि दिस इज बेसिकली द सब्जेक्ट दैट इज नॉट historically there is not a year of 100, we may say that it is not a story of a more than a century, यानी एक सदी से ज्यादा की कहानी नहीं है मोस्टली, यानी ज्यादातर ये 70 years की कहानी है कि 70 years बैक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आने लग गया था। लास्ट 40 years के अंदर इसमें क्या है, अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन दिस फील्ड, यानी बहुत सारा लोगों ने सीखना शुरू किया कि ये है क्या। लास्ट 40 years में इसके अंदर यू मे से दैट द अपडेशन प्रोसेस स्टार्टेड। लास्ट 40 years there was a concept to have certain learning from this concept, from this course. Codes, reports and laws have come out. What does it mean? It means 40 years back, or you may say before that, before the tenure of 40 years there was no rules and regulations, there was no reports, there was no concept of the law। जब ये 40 साल के अरसे से पहले कोई रिपोर्ट नहीं थी, कोई कोड या कंडक्ट नहीं थे, कोई लॉ नहीं थे, तो एट दैट टाइम इट वाज डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उनके लिए ये चीजें इतनी आसान नहीं थी जितनी आज हमारे लिए हो गई हैं। ठीक है, तब उन्हें जब वो रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ नहीं थे तब ज्यादा परेशानियां थी। जब ये रूल रेगुलेशन लॉ और चीजों को साथ साथ लेके चलने लगे तब चीजें आसान होने लगे। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड थ्योरीज हैव इवॉल्व्ड। आज आप अगर गूगल पे जाके सर्च करें तो देर आर मोर देन यू मे से 10,000 रिसर्च पेपर्स अवेलेबल फॉर द स्टडी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लेकिन आज से 40 साल पहले इतने पेपर्स नहीं थे, इतनी नॉलेज नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बिकम द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या रूल्स और रेगुलेशन है, मेरी क्या ड्यूटीज है, ये कोई सिखाने वाला नहीं था, मैं कहीं से नॉलेज हासिल नहीं कर सकता था। तो there was so much difficulties 40 years back, but with the passage of time the things came out, and now what we may say that the corporate governance is considered as a field of study. The corporate governance has its own weightage within an organization. The board of directors have certain rules, regulation, law, code of conduct, and whatever the activity they are performing within an organization, they are performing the duty as per the rules and regulation इन्फॉर्म टू देम, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्हें इन्फॉर्म किए गए हैं उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटी बना रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कॉर्पोरेट रॉन्ग्स का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया। इसमें क्या है कि क्या क्या गलतियां थी, लेटर ऑन वी डिसाइडेड कि नहीं जी नहीं, ये गलतियां ये ज्यादा देर नहीं चल सकती, हमें इस पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें कोई बेहतरी लानी पड़ेगी। तो पहला क्या है, लॉस ऑफ एथिक्स। कोई रूल्स नहीं था। मैंने जैसे हमने एजेंसी प्रॉब्लम का पढ़ा है कि प्रिंसिपल
gave the money to the agent and agent was supposed to manage the money in a good way. लेकिन एजेंट क्या करने लग गया, अपने फायदे की काम करने लग गया। यानी अगर एक डायरेक्टर एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है फॉर अ प्रिंसिपल, डायरेक्टर ने जी रूल बना दिया जी मेरी सैलरी 1 लाख नहीं होगी, इट शुड बी 2 लाख। मतलब he was considering the decision making power as an authority to make something better for his own personality. I am not going to discuss any sort of political uh, discussion with you or political activity with you, but we have an example of conflict of interest being proposed by Imran Khan. In today's scenario, you may say in today's uh, prevailing activity in Pakistan, we have a law, conflict of interest. What does that law states? कि जो जो आप काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपना जाती बिजनेस नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट फिर आने लग जाएगा। जब आप किसी गवर्नमेंट के सेक्टर को इस्तेमाल कर रहे होंगे तब आप क्या करेंगे कि उस गवर्नमेंट के सेक्टर के से बेनिफिट्स हासिल करेंगे अपने प्राइवेट बिजनेस के लिए। तो ये क्या है, जब ये रूल नहीं थे, यानी ये एथिकली नहीं था कि आप एक काम करें। फॉर एग्जांपल आप एक पीआईए को चला रहे हैं और आपकी अपनी एयरलाइन है, यानी जब भी आप फिर पीआईए के फायदे की काम नहीं करेंगे, वो सारे डिसीजन मेकिंग यानी वो डिसीजन मेकिंग वो करेंगे जिससे आपकी प्राइवेट कंपनीज को फायदा हो, पीआईए को फायदा हो या ना हो। मतलब ये लॉस ऑफ एथिक्स था। एथिकली बहुत सारी चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं थी। दूसरा क्या, अर्निंग बिकेम एवरीथिंग। यानी उनका काम क्या था, जब हमने कहा कि शेयर होल्डर्स अप्रोच जो हमने डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 1 में, शेयर होल्डर्स अप्रोच क्या है? शेयर होल्डर अप्रोच ये कहती है कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करेंगे, यू शुड कंसीडर और यू शुड गिव प्रेफरेंस टू द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल नॉट हैव द सेम वेटेज। यानी जब आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो शेयर होल्डर्स उतनी वेटेज नहीं देंगे, सॉरी शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा वेटेज देंगे और बाकी चीजों को इतनी वेटेज नहीं देंगे। तो उससे क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उनकी अर्निंग का काम करने लग जाएंगे, जिससे आपके बाकी स्टेक होल्डर्स कॉम्प्रोमाइज करने लग जाएंगे या सफर करने लग जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल जो मैं आपको दे सकता हूँ वो यही दे सकता हूँ, पाकर फर्टिलाइजर अगर सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के लिए सोचने लग जाए तो वो जो इन्वायरमेंट है उसे बहुत ज्यादा पॉइजनस बना सकती है। क्यों? क्योंकि उससे कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनकी अर्निंग डेफिनेटली ज्यादा होगी। अर्निंग ज्यादा होगी तो शेयर होल्डर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द गवर्नेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बट एट द सेम टाइम दैट अर्निंग इज नॉट फिजिबल, इज नॉट सुटेबल for all the general public being located in the area near Pakra fertilizer। पाकरा फर्टिलाइजर के करीब के तमाम इलाके पोल्यूटेड हो जाएंगे। यानी उनकी अर्निंग तो बढ़ जाएगी लेकिन माहौल खराब हो जाएगा, इन्वायरमेंटल चेंजेस आने लग जाएंगे। फिर क्या है, यही चीज ये गलत था। कॉर्पोरेट रॉन्ग से मतलब है क्या क्या गलतियां करते थे। इनइफेक्टिव बोर्ड, स्मार्ट एग्जीक्यूटिव। यानी जो बोर्ड के मेंबरान है, फॉर एग्जांपल अब हमने कहा कि जी 10 मेंबर्स हैं जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। क्या मतलब, क्या 10 बंदे एज एन एजेंट काम करेंगे, जो उन्हें ओवरव्यू करने वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो सिर्फ एक है। तो क्या मतलब उस भाई एक बंदे ने क्या 10 लोगों को ओवरव्यू करना है? कोई ना कोई रूल्स नहीं, इनइफेक्टिव बोर्ड था, बोर्ड का कोई स्ट्रक्चर सही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल सीईओ के अंडर सारे लोगों ने काम करना होता है, सीएफओ को ज्यादा अथॉरिटी दे दी जाती है या सीएफओ को ज्यादा सुप्रीम अथॉरिटी पे कंसीडर किया जाता है। तो ये रॉन्ग एक्टिविटी है, क्योंकि सीएफओ ने सीईओ के फैसले के मुताबिक पैसा अरेंज करके देना है, लेकिन पैसा ही एवरीथिंग नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन दैट विल बी डिसाइडेड बाय सीईओ इज मोर इफेक्टिव और मोर सिग्निफिकेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। उसके बाद ह्यूज रेम्युनरेशन फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। यानी इतने पैसे कमा डायरेक्टर सैलरी ले लेते थे जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना बेनिफिट था वो कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता था। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो हम जितना भी हम क्या कह सकते हैं फैसले होते थे वो अपने फायदे के लिए होते थे, जिससे डायरेक्टर्स क्या थे अपने रेम्युनरेशन बढ़ा लेते थे। फिर है
greed leading to disparity among senior manager and the other employees. अगर लेट्स वो हम कहते हैं कि सैलरीज बढ़ानी है, आजकल हमारा वैसे ही हॉट टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जी जो एम्प्लॉयज हैं या जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो MNAs और MPs हैं उन्होंने आज से 2-3 महीने पहले रूल पास करवा के बिल पास करवा के अपनी सैलरीज बढ़वा ली थी, अपनी रेम्यूनरेशन बढ़वा ली थी। यानी उनकी ग्रीड थी, उनकी लालच थी जो पैसे के लिए, वो अपनी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, और जो एम्प्लॉयज होते हैं या छोटे तबके के मुलाजमीन होते हैं उनकी सैलरी बढ़ाने के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये गलत चीज़ थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ने ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल लेकर चलना है। दे हैव टू कंसीडर द benefit of all the employees being part of an organization। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या या वो खुद हिस्सा है या उसके से रिलेटेड जितने एम्प्लॉयज हैं उन तमाम के बेनिफिट्स को देखना इज द responsibility of the corporate governance। Fine। Then we have short-term goals and consideration। Means it means that the governance or the board of directors were giving weightage to the short-term benefits। यानी उन्होंने क्या किया कि ये 1 साल के अरसे में हमें फायदा पहुंचाएगा। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अब ऑर्गेनाइजेशन ने तो चलना है 10 साल के लिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पता है कि 3 साल के लिए मुझे रिक्रूट किया गया है। इस 3 सालों में अगर मैंने बेनिफिट्स क्रिएट करके दिखा दिए तो मैं शायद नेक्स्ट टेन्योर के लिए मुझे रिन्यू कर दिया जाएगा या एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो उसने कभी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बात नहीं सोची, उसने हमेशा शॉर्ट टर्म गोल सेट किए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स सेट किए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इट इज़ अ गुड एक्टिविटी कि अगर हम शॉर्ट टर्म एक्टिविटी करते रहें और उससे फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को फायदा मिले, लेकिन लेट्स सपोज आपने इस साल की सेल बढ़ानी है, आपने उसके लिए मशीनरी ऐसी परचेज कर लिया जिससे इस साल की प्रोडक्शन बढ़ गई, सेल बढ़ गई, लेकिन वो जो मशीनरी है वो इतनी महंगी है कि उसे उसका जो एक्सपेंसेस हैं वो अगले कई सालों तक चलने हैं और अगले कई सालों में शायद प्रोडक्शन की ज़रूरत ना पड़े। ये ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि एक मशीनरी जिसने इस साल की प्रोडक्शन तो बढ़ा दी, लेकिन उसकी उसकी जो एक्सपेंसेस हैं या उसकी जो कॉस्ट है वो हमें कई सालों तक बियर करनी पड़ी। यानी आपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो आपके जो प्रॉब्लम्स थी उसे आपने इग्नोर कर दिया। फिर कॉल्यूजन बिटवीन डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर। Collusion means there is basically the level of friction. There is the level of conflicts between the directors and auditor। डायरेक्टर कह रहे हैं ये काम करो, ऑडिटर कह रहे हैं नहीं सर ये एक्टिविटी ऐसे नहीं हो सकती। या कोई चेक होता है, डायरेक्टर कहते हैं इसे अप्रूव करा दो, ऑडिटर कहता है नो सर इट इज बेसिकली अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन। इस चेक को पहले हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर एग्जांपल चेक करनी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, आप कह रहे हैं चेक हमें पास करा दो। ऐसे बहुत सारी जो है ना कह सकते हैं कि आम रूटीन में ये कन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए, ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए, लेकिन को अलायंस का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अब ये मेरी बात समझे जरा, को अलायंस का कॉन्सेप्ट क्या है? को अलायंस है कि दोनों एक ही सिम्प में चलने लग जाए, जो डायरेक्टर कह रहा है वही करने लग जाए। इस तरह की एक्टिविटी पास में हुई है। आगे हमारा एक टॉपिक आने वाला है इसी चैप्टर में अंदर, वो है स्कैंडल्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या स्कैंडल्स या क्या क्या जो फेलियर्स हुए हैं बिजनेस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से वो क्या है। उसमें यही चीज़ें, इसमें बहुत सारी एग्जांपल मिलेंगे कि जब ऑडिटर्स ने अपना काम सही तरीके से ना किया, वो वही कुछ करते रहे जो कि उन्हें डायरेक्टर्स देखा। तो इस सूरत हाल में ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा सफ़र किया और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई। तो वो ये उनकी गलत हरकतों की वजह से या उनकी जो गलत डिसीजन मेकिंग थी या गलत एक्टिविटी थी, गलत प्रैक्टिसेस थी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उन तमाम की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस फेल हुई। ठीक है। प्रेशर फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्सेप्ट माशाल्लाह से मेरे ख्याल से हर बच्चे के दिमाग में सही हो गया होगा। इंडिविजुअल मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल मतलब HBL इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में, ये वो इंस्टीट्यूशनल है। प्रेशर फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी जब आप कहते हैं कि नहीं जी इस बंदे ने मुझे लोन दिया है या इस बंदे ने मेरे शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो क्योंकि ये बंदा जो कह रहा है वो चाहे मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा है या नुकसान है, चाहे नुकसान है, लेकिन मुझे इस बंदे को प्रेफरेंस देनी है, मुझे इस बंदे को
कि डिसीजन इसका इसे इंटरप्ट करने देना है मेरी डिसीजन मेकिंग में, तो इस तरह की एक्टिविटीज से कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत सफ़र करती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट बाय स्मॉल इन्वेस्टर इन बिग कंपनीज, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर रूल एक्टिविटीज सही ना हुई, उनकी डिसीजन मेकिंग सही ना हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि छोटे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया। जब आप ये हमेशा याद रखिएगा, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और विद इन इकोनॉमी you have to rely on the small level or the mediocre persons or the low level class, क्योंकि लो लेवल क्लास हजारों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है, जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 10 होंगे, 100 होंगे। तो आप 10 और 100 लोगों को खुश करने के लिए लाखों की जो इन्वेस्टमेंट है, लाखों के जो पैसे हैं, जो बड़ी अपॉर्चुनिटी, वो बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं, मतलब ज्यादा फंड्स आपको लाखों से मिल सकता है, 100-200 से नहीं मिल सकता। तो आपको हमेशा वेटेज देनी चाहिए उस तबके को जिससे आपको ज्यादा पैसे या ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तवक्को है। तो ऐसे लोगों को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में साथ लेकर चलना है। इन पाकिस्तान फैमिली कंट्रोल ऑफ कंपनी, अब ये बड़ा मसला आ गया। इसमें हमारी बड़ी एग्जांपल्स तो मैंने खुद लाइफ में देखी हुई हैं कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज थी, जिसमें जो फैमिली मेंबर्स थे दे बिकेम द ओनर्स ऑफ द कंपनी, और फिर उनके दरमियान आखिरी वो आपसी इख्तलाफात की वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस बंद होते हुए देखे, क्योंकि उनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन मेरिट नहीं थी। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा जानने वाला है, तो उसका जो एजुकेशनल जो है ना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके अंदर स्किल्स नहीं है, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैंने उसे क्या कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने बिजनेस में पार्टनर बना दिया, या उसे मैंने एग्जीक्यूटिव सीट पे बिठा दिया। तो और एक बंदा जो मेरे पास पीएचडी फाइनेंस है, उससे मैंने जॉब दे दी है मिडिल लेवल मैनेजर की। तो उसके पास स्किल्स भी थे, उसके पास नॉलेज भी थी, वो अच्छी डिसीजन मेकिंग भी कर सकता था, वो आपके लिए बेहतर फैसले भी कर सकता था। ये सारी चीज़ें आपने इग्नोर की और आपने क्या किया, एक ऐसे बंदे को सीट एग्जेक्टिव सीट पे बिठा दिया जिसमें कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे फैक्टर्स आपके लिए फेलियर्स का बाइस बनते हैं। ठीक है, और ये रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस है। आपने हर बंदे को मेरिट पे रिक्रूट करना है। और ये जो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस है, अगर आपका फैमिली ओरिएंटेड वर्क है, तब भी आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे स्किलफुल पर्संस को लाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर विल बी स्ट्रॉन्गर, और द डिसीजन मेकिंग of that group of people will be beneficial for an organization as compared to giving that executive seat to a person who is unskillful, जिसके पास स्किल ही नहीं है, उसे आपने एग्जीक्यूटिव सीट दे दिया। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ स्कैंडल्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, उसकी हम एग्जांपल्स डिस्कस नहीं करेंगे अभी। हमारे पास कुछ स्कैंडल्स पाकिस्तान के हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। अब ये वर्ल्ड कॉम की एक एग्जांपल दी हुई है, ये हम उसमें कोई ओवर स्टेटमेंट की गई थी प्रॉफिट की, जिसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स ज़्यादा बियर किया करना पड़ा ऑर्गेनाइजेशंस को। एडेल्फिया कम्युनिकेशंस कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका यही एक्टिविटी हुई। एनरॉन कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी एक्टिविटी हुई। वेस्ट मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेशन की एक्टिविटी हुई। फिर टाइको कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गलत फैसलों से नुकसान हुआ। पेरिग्राइन सिस्टम का नुकसान हुआ, इनक्लोन सिस्टम का नुकसान हुआ, राइट एट का नुकसान हुआ। ये ऐसी कुछ एग्जांपल्स हैं यूएसए की जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स में है। अभी इसके बाद हम दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह यूके की स्कैंडल्स की डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद एक और हमारा टॉपिक पाकिस्तानी स्कैंडल्स के ऊपर आएगा, वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर हम अपनी कम्युनिकेशन को या अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह। आपसे चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।